Hello everyone, welcome to your accounts class and hope you guys are happy and safe at your home. Now moving to our content, cash flow statement. Cash flow statement, we studied about direct method, and here is a format about direct method which I explained you in my previous video. Now on the basis of this direct method, today we will solve one numerical question, and on the basis of that numerical question you will do the rest of questions related to direct method. Now let us proceed. Direct method, you already know the format. First of all, what happens in direct method? Let's have a review. What we do, whatever direct method we are making for operating activities, direct method is done only for operating activities, and whatever activities are related to operating, we will just represent them in this format. First of all, we will write cash received from customers. Cash receipt means revenues. Whatever revenues we are having, we will write it, and then we will deduct our what? Expenses or the payable income which we pay. Sorry, income not payable thing is not an income. Okay, cash which is payable, or we can say trade payable. So we will less cash paid to supplier and cash paid to employees. Now एम्प्लॉयज को हम जो पे करते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है. जब हम अपने रिवेन्यूज में से द अमाउंट ऑफ पेमेंट लेस कर देते हैं, देन हमारे पास क्या आता है? कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. उस ऑपरेशन से, यानी कि उस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई है उसमें से हमारे पास टोटल कैश आ जाता है, एंड देन वी डिडक्ट द इनकम टैक्स which the business need to be paid in the year. Okay, हम जब इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं देन हमें क्या मिल जाता है? उसके बाद नेट कैश मिल जाता है. नेट कैश मिल जाता है. बट बिफोर दैट अगर हमारी फर्म के पास या हमारे बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ऑलराइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, देन हम उसको क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एज पर द आइटम्स. ओके, देन व्हाट विल वी गेट? अवर नेट कैश फ्लो. सी हाउ सिंपल. revenues less expenses, what will we get? Cash generated from operations. And then what will we minus? Income tax and extraordinary items. Then we will get our net cash from operating activities. Now let's go to a numerical question. This is a numerical question. You can go through illustration 1 of your NCERT for this numerical question. This is the same numerical question, and here is explanation of that. So you guys can open your book NCERT cash flow statement unit 6 illustration 1. Now this question says that from the following information, cash flow from operating activities using direct method, statement of profit and loss is given. This question gave us a statement of profit and loss for the year ended March 31. Alright, so we are having a statement for year ended March 31. Okay, and what we are having? We are having revenues, income, total revenue. Okay, expenses, there are some expenses also, insurance paid, other expenses, employees benefit expenses. Okay, depreciation. Now depreciation is not the part of direct method. डायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं. डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड. आई ऑलरेडी told you. The cost of material consumed, this will come in your purchases.
इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंसेस, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा डायरेक्ट मेथड में। एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये आपका कैश पेड टू एम्प्लॉयज हो गया जो आप देंगे, तो ये एक्सपेंसेस ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, सो योर इनकम टैक्स इज ऑल्सो गिवन हियर। इनकम टैक्स इज 10,000, गुड। So, okay, now we have got our all the things, and just what we have to do, we have to implement in format. But before that, in this question, इस क्वेश्चन ने हमको इतना सिंपल तो नहीं होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ने हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये दो दे रखे, दो मीन्स 2 दिया में एट द 2 टाइम ऑफ पीरियड। एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है April 1, 2016, ओके। द नेक्स्ट वन इज फॉर 31st of March 2017। नाउ यू सी, ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर 31st of March 2017। देन इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? Accounting year, what will be the accounting year? 16-17, 1st of April 2016 to 31st of March 2017। Now, हमें यहाँ पे इसका मतलब है अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग के भी डाटा दे रखा है। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन डाटा बोथ सेम थिंग। एंड अकाउंटिंग ईयर के एंड की भी इंफॉर्मेशन दी है एंड बिगनिंग की भी दी है। नाउ वी आर हैविंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑलराइट। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स रेवेन्यू, इनकम एट द बिगनिंग एंड एट द एंड, गुड। ट्रेड पेएबल, नाउ ट्रेड पेएबल मीन्स द कैश विच वी हैव पेड at the beginning, at the end, okay. Inventories, okay. Outstanding employees benefit which were outstanding at the beginning दिया है हमें। expenses दिए हैं कुछ, prepaid insurance, beginning and end. Likewise income tax, outstanding, beginning and end. And outstanding, the word outstanding, you know very well, I explained you in 11th क्लास। आउटस्टैंडिंग हमने ये करा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 में। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो कि हमें पे करना है, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं करा, बट हमने उसका यूटिलाइज कर दिया है। नाउ सॉल्यूशन, लेट्स मूव टू सॉल्यूशन। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवेन्यूज में से किसको लेस करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके। नाउ रिवेन्यूज में से किसे लेस करता है, पेमेंट। तो फर्स्ट फॉर्मेट में हम पहली चीज क्या लिखते हैं, कैश रिसीव्ड, यानी कि रिवेन्यूज, ओके। रिवेन्यूज को हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। नाउ वैल्यू के लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट बिफोर मेकिंग दोज वर्किंग नोट लेट अस मेक द फॉर्मेट। इसमें से फिर क्या लेस होगा, कैश पेड टू सप्लायर, ओके, कैश पेड टू एम्प्लॉयज। इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग कैश गिवन टू सप्लायर ऑल्सो एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो। हमने दोनों को, ट्रेड पेएबल भी हुआ है एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस भी गए हैं। इसका मतलब सप्लायर और एम्प्लॉय दोनों को ही पेमेंट दी गई है। सो बोथ आर एक्सपेंसेस, ये हमारे रिवेन्यूज में से लेस होंगे। रिवेन्यूज मीन्स कैश रिसीव्ड। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड हो जाएगा। फिर अदर एक्सपेंसेस जो है हम उसको करेंगे, अदर एक्सपेंसेस हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी पेड किया था, ओके। फिर हमारे पास कैश जनरेटेड आ जाएगा, ओके। रिवेन्यूज में से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उनको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। ऑल दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस रेवेन्यू, देन वी विल गेट कैश जनरेटेड। अब इस कैश जनरेटेड में से क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो कोई हमारे पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट बिफोर दैट इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स हमारे पास है तो हम इनकम टैक्स की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और इनकम टैक्स को लिखेंगे. नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ दी नहीं है क्वेश्चन में. वी आर नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसीलिए हम जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है हमारे पास यहाँ पे, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं. इनकम टैक्स पेड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो आ जाएगा. नाउ सो दिस इज ए फॉर्मेट. इस फॉर्मेट को अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे. हमारी रिसिप्ट कितनी है, कैश रिसिप्ट, वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए वर्किंग नोट. सो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे. जितनी भी कैलकुलेशन अकाउंटिंग में आप लोग करेंगे वो सब वर्किंग नोट में करेंगे, कोई रफ वर्क नहीं होगा. यू विल शो द कैलकुलेशन even in your board's exam. Okay, leave it. Next, working note. वर्किंग नोट बनाएंगे हम. वर्किंग नोट्स, फॉर वर्किंग नोट you have to wait for my next video lecture, and for that you need to press the bell icon and subscribe the channel. Till then you try to solve this working note by yourself and complete your work. Have a nice day. Good luck. Thank you.